privatization reduce the corruption. So I am against this topic. Because suppose if we privatize each and every government sector, then what will happen is the private company can create monopoly in the market. Like in the recent case of Jio, we saw that once the Jio got the traffic, they created monopoly in the market. Now they are increasing their price, recharge price at very fast rate, due to which the common people are suffering. This is also a type of corruption because here common people can't do anything against it because it's a private company. And now they are switching to a government-owned company which is BSNL because they know that only government companies can help them. And due to which the government sectors also work for the favor of the public welfare, whereas the private sector works for their own profit. One more point I will say that if any government sector goes into corruption, then we have the right to file right RTI Act, due to which we can know whether it is corrupted or not. But in case of private company, we can't file RTI against each private company. So we won't be able to know even it is corrupted or not. At last, I will say that the corruption doesn't depend on the government or private sector. It all depends on the people. If people is corrupted, he will do corruption in any sector. If he is not, then he will do not corruption in any type of sector. Thank you. Hello everyone, this is Prince Kumar. I am here to say in the favor of privatization will reduce corruption. When we talk about the private companies, let us make the list of top 100 most valued company in the world. All of them shall be private company. This says that there is a certain way of efficiency, there is a certain way of infrastructure in the private sector which is different from the government sector. When we talk about the government sector, why the corruption is most? Because the salaries are low. For example, at highest post, even our Prime Minister earns only 1,60,000 per month. This says that the salaries are low, which leads to people involved in corruption and other kind of bad things. Whereas in private sector, the salaries are very high, the emoluments are very good, the facilities are very good, which leads to less corruption. Even in private company, if anyone is involved in misdoing or misbehaving, he shall be removed. This is the brutal kind of things which is done in private company, which creates some sense of fear among the employees that if he or she is involved in misbehaving or in corruption, he shall face a very large amount of punishment. Whereas in government sector, there is a certain kind of delay in process. If anyone is committed guilty, then also the matter will go in court and it will run for a decade and decade. And Good afternoon, everyone. Myself Shubham, a student from EC. I will be speaking against the topic. So I think privatization will not reduce corruption because what I believe is privatization is done because the government is incompetent. It shows the incompetency of the government to follow and implement rules and regulations to save some companies, to save some industries. For example, if we see the case of the PSUs we have in India, the ONGC, the BHEL, these PSUs run with our natural resources. Our own natural resources like oil, petroleum are used in these PSUs. But if we privatize these things, the private stakeholders will use these profits for their own self, for their own country, not for us. Those natural resources which were meant for us are used by others. So how can it be true? Also, some people actually say that private industry privatization will do and it will become very efficient. The system will become very efficient. But what the data shows is the top 500 fortune companies of the world, about 52% of them have faced bankruptcy. So what does this suggest? Does this suggest the management of those companies were not good? Definitely that must have been good. But what follows in a company is certain things, many things happen in a country. Some companies are at loss at some time, sometimes they are at profit. So we cannot say that just because some companies are at loss, we can just sell it off. We cannot sell off all of our natural properties and say, okay, just go. We don't need you. So this is what I think. Hello, myself is Karma and today I am against the topic is
privatization is linked to the reducing corruptions. मैं हिंदी में ही अपनी बात रखना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन के वजह से करप्शन खत्म होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता है, बट एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, 1989 के आसपास वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत सारे पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइज करना चाहा था, लेकिन इस कदर तक वहाँ पे करप्शन हो गया था कि वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनको अपने पद से रिजाइन देना पड़ गया था। अगर हम अपनी कंट्री के बारे में ही बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय वर्ल्ड वार 2 भी उसी टाइम के आसपास हुआ था, तो पूरा दुनिया दो तरफ बटा था, एक था यूएसएसआर, दूसरा था यूएसए। मतलब एक तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात किया जा रहा था, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म का बात किया जा रहा था, बट हमारे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बीच का रास्ता चुना। इसका रीजन ये था कि स्टार्टिंग में हमारा जो सोसाइटी था वो गरीब, मतलब बहुत सारा ऐसा सेक्शन था जो बहुत ज्यादा गरीब था, इलिटरेसी थी बहुत ज्यादा, हेल्थ नहीं था, एजुकेशन नहीं था। तो हमने ये सोचा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का डोमिनेशन ज्यादा होना चाहिए ताकि समाज की हर एक सेक्शन का सही से ग्रोथ हो सके। तो ये एक रीजन रहा कि हमने मिक्स पैटर्न को चुना। लेकिन 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसा स्कीम लाया गया था, नो डाउट इससे हमारे कंपनी का ग्रोथ हुआ और हमारी कंट्री का ग्रोथ हुआ, जीडीपी बढ़ा। बट इसका ये भी एक ये रहा कि अभी के टाइम में जहां मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया का, बट प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट का डोमिनेशन ज्यादा होते जा रहा है। तो ओके, थैंक यू। Hello, my name is Nishuras. As we know that today's topic is, will privatization reduce corruption or not? So I am talking in the favor of that privatization will leads to the less of corruption. So the topic, since we know that the corruption is everywhere, but the topic is privatization will reduce or not. So yes, it will reduce the corruptions, because in government sectors there are many more corruptions and people are doing once get selected in a government jobs and they think that yeah, I'm now I'm everything and I will do whatever I want, and they get indulged in corruptions. And there are some people who doesn't do, but many people do they use the power of their positions and indulge in the corruptions. But in private sectors, people get afraid of doing corruptions and they are far away from these things. Yes, people can do corruptions in privatization, but they will get fear and they are less indulged in in corruptions and so thank you. Hello everyone, this is Sunny of Mechanical Engineering, and I don't think privatization can decrease the corruption. So I am against the topic. I am against the topic which is corruption can lead to privatization can lead to less corruption. So here are some points which I am highlighting. First of all, the process of privatization is itself susceptible to corruption, as the allocation of private institutions or the allocation of public assets can be influenced by the favors of the people who are at higher positions. So this is also corruption. This is also type of corruption. Second, there is lack of transparency in the private sectors, as there is no government watch agency on them, so they may manipulate data of people which can oppose the social welfare. Third, I would like to highlight the point that privatization can lead to political favors, means political corruptions, as politicians can get favors by the top officials of the private companies in exchange of favors to win the contracts, as we can see in Adani Havocs. Also we can see it in. Good afternoon everyone, I'm Sakshi. Today I'm speaking against the topic privatization will lead to less corruption. So privatization focuses more on profit rather than public interest.
Like if we talk about medical and schooling educational facilities, in most of the places, the lower class of our society or the lower middle class of our society are not even allowed to enter private hospitals. They if we privatize these common facilities like railways, hospitals or schools, lots of people from our society can't get benefit from them. Yes, I agree that they provide better services, better maintenance, but definitely like corruption doesn't depend on whether it is private or public. It depends whether you are following the rules or regulation properly, like selfishness of a person. Like एक बार मैं आपका व्यू को दोबारा सुनना चाहूँगा। आपका व्यू में दोबारा सुनना। Sir, according शॉर्ट में सर। sir, according to me, I have said that You are talking about some ONGC. yes, sir. Sir, I talked about PSUs which involve natural resources like ONGC, which are using the natural resources of our own country. So I said that these natural resources should are utilized by these companies. Thus, the profit should used by the common people of the same country. The profit should not lie within the profits of the stakeholder, the owners. Even sometimes we see the owners are from different countries. So these profits sometimes goes even to the foreign countries also. So I have said that these countries, our countries should have regulations that these things which are using our own natural resources should not be privatized at all. They should be for the common people, they should be for the common interests. तुम्हारा टॉपिक से तुम भटक गए, तुम हिस्ट्री बताने लगे, ठीक है, फ्रैक्टिस का जो टॉपिक था उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो। एक ONGC विदेश लिमिटेड है, नाम सुना? सर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि क्या रीजन अब आपको समझ में लिंक करना है। 1 घंटे का एग्जाम होता है। एक्चुअली आई वांट टू लिंक फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेटाइज करने से लॉस ऑफ पब्लिक कंट्रोल हो सकता है, पहला चीज। सर दूसरा सर इस पे डेटा भी है सर। दूसरा जो ग्लोबल करप्शन का जो बैरोमीटर है उसके थ्रू अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइज सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा करप्शन हो रहा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। टोटल वर्ल्ड का 27% जो करप्शन है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। उसके बाद सर जो एक और चीज है कि हमें जो हमारा एंटी करप्शन लॉज है वो हमें स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, रेदर दैन कि हम चीजों को प्राइवेटाइज करें, ताकि जो लॉज है उसको टाइम पे हम लोग इन्फोर्स कर पाए सोसाइटी के अंदर। ठीक है सर। स्टूडेंट को कुछ बोले हो फेवर या अगेंस्ट में, तो आप एक दूसरे से कुछ डिस्कशन करना चाहते हो कि जो वो बोले आप उसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स बोल सकते हो। तो जैसे किसी ने बोला हो उसकी बात को, अगर उसके अगेंस्ट उसकी बात को काट करके अपना पॉइंट रखना हो। इनका क्लैरिफाइंग था कि जो टॉप 100 कंपनी है ना वो मतलब बहुत वो कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू एक डेटा रिलीज होता है उसके अकॉर्डिंग दुनिया का 27% जो ग्रीन हाउस जो गैस निकाला जा रहा है वो सिर्फ टॉप 5 प्राइवेट कंपनी के थ्रू निकाला जा रहा है। तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंटल इशू है या सोशल नेग्लिजेंस का बात कर लो वो इफेक्ट हो रहा है। इस पे आपका क्या व्यू है? Well, the carbon emission is only related with the manufacturing industry. You are talking about that 5 companies in which the carbon emission is more. If you research that companies belonging to the manufacturing kind of things. No. Definitely it belongs to manufacturer, but Google is not responsible for carbon emission because it is service company, not manufacturing I company. am talking about top 5 manufacturing company of the world, Yes. which release 27% of the total carbon for greenhouse gas emissions. Even the government manufacturing company also responsible for the carbon emission as private companies. So you cannot blame only the private companies. I can blame government, but I can't
Yes, you can blame. There are many cases files against them in different countries. How can not you blame? The procedure which is included in the government sector, it is quite different from the No. They come under the control of government. Government have all the right to take action against them. In India, you can see. Okay. Except me and Prince, I'm seeing here everyone is talking about against that privatization will not lead to the. सभी लोग privatization के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले अपने इंडिया, जैसे हम लोग इंडियन है तो हम लोग इंडिया के अंदर देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या है, तो पहले अपने अंदर तो झांकिए कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर बात कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर मतलब करप्शन ये नहीं कि सिर्फ है जो कि वो ज्यादा पैसा ले रहा है वो कम पैसा ले रहा है, सर्विस देखिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। यस, प्राइवेटाइजेशन है जो कि थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है, बट जैसे कि हम लोग रानी कमलापति स्टेशन जो कि अभी प्राइवेटाइजेशन फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन बना है, और उसका जाके आप स्ट्रक्चर देखिए, उसका वेल मेंटेनेंस देखिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसका मेंटेनेंस देखिए, एंड देयर एवरी सारे पर्सन है जो कि एकदम अच्छे से काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, बाकी जितना भी गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कूड़ा कचरा ऐसे इधर उधर फेंका रहता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। बाकी जैसे स्कूल्स में देख लीजिए, मान लीजिए अभी है कि थोड़े गवर्नमेंट है जो कि टाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी ऑफिसर की तरफ है, मतलब उसको छोड़कर ट्रेनिंग क्वालिटी को बढ़ावा देना। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट करप्ट। ओके, स्टॉप। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट। Okay, so all the 8 participants have performed well, but we have selected only 4 for the next round, and they are Vikas Kumar, Prince Kumar, Subham Kumar, and Sakshi Kumar. Please come, all of you, and select these. उसमें नंबर लिखा हुआ है और उसमें लिखा है आपको फॉर या अगेंस्ट में बोलना है। तो जिसका नंबर 1 है दैट विल स्पीक फर्स्ट, देन द सेकंड वन, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। Okay, you have 90 seconds to speak on for or against. So your name is Prince Kumar. So Prince Kumar is coming first to speak. Hello everyone, this is Prince Kumar. I am here to say in the motion of privatization would lead to less corruption in our country. As we see, the meaning of the government is to govern the country, is not to run or is not to own the company. So it must be good for our government to let the people of this country to run the companies and to run the businesses. It's not the job of our government is to run the companies. It is the result that we are facing now. There is corruption in our government system. There is a lot of non-transparency in our government system. There is a lot of disarrangement in our government system. When we talk about private companies, yes, there are problems, but there are very few as compared to the government sectors. It has shown many possibilities. When we talk about when our country get independent in 1947, after 50 years, after not 50 years but 40 to 45 years, we know the requirement of privatization. As a result of which, in 1991, in the leadership of Narasimha Rao ji, when Manmohan Singh ji was a finance minister, we came to liberalization, privatization, and globalization. This shows the importance of privatization. When we talk about the private sectors, there is a certain kind of rule and regulation. There is certain kind of things which binds the people. आप प्राइवेटाइजेशन के फेवर में थे, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान का एक शहर है बलूचिस्तान, वहाँ पे जो
बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो चाइनीज पीपल को वहां से भगा रहे हैं। रीजन है कि उनके प्राइवेट रिसोर्सेज को वो बहुत बुरी तरह से यूज कर रहा है, जिससे वहां पे नेचुरल डिजास्टर जैसे फिनोमेना देखने के लिए मिला है। दूर में जहाँ हम इंडिया की बात करें, लद्दाख के अंदर भी देखा गया है, जहाँ पे हाल में ही वहाँ के जो बोल सकते हैं जो समाज सेवक या साइंटिस्ट है वैसे वो इसके विरोध में आए थे कि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो सेक्टर है नेचुरल रिसोर्सेज का वो खत्म होते जा रहा है, जिससे वहाँ पे डिजास्टर कभी भी आ सकता है। आपके पास कोई ऐसा डेटा है, मैं डेटा का बात कर रहा हूँ, जो इस चीज को खत्म करता हूँ। बात नहीं, सिर्फ मुझे डेटा बता दीजिए कोई ऐसा। हिंदी में कैसे करें? हर एक जगह प्राइवेटाइजेशन नहीं चल सकता। जहाँ I want data, please. I want data. you can prefer your smartphone or newspaper, you will get a good enough of data. What? Pardon me again. I can't. Use your phone, use magazines, use anything that you have. You will get. I know the. I will also ask before कि 27% जो है वो पूरे पॉल्यूशन का सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेंगे। हमारा डेटा ही था, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये कार्बन जो CDPM का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो बोल रहा है, ये मेरा डेटा नहीं है। कार्बन एमिशन किस कंपनी से होता है? कार्बन एमिशन होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। गूगल कार्बन प्राइवेट का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइवेट। पहले पूरा सुन तो लो फिर बोलना। कार्बन एमिशन होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। कार्बन एमिशन सर्विस बेस्ड कंपनी से नहीं होता। कार्बन एमिशन Amazon से नहीं होता। कार्बन एमिशन एप्पल से नहीं होता। कार्बन एमिशन गूगल से नहीं होता। कार्बन एमिशन होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा वहाँ कार्बन एमिशन होगा, चाहे वो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। इसमें प्राइवेट कंपनी का किसने कहा कि गूगल, आईफोन, सैमसंग से? यहाँ पे आपका नॉलेज देखने में नहीं है सर, इधर पूछे नेक्स्ट इस बात को याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछना, हां नेक्स्ट मैं नॉलेज देखने आया ही नहीं सर। ठीक माइक से स्पीड हो सकता है आपके पास हो। हां ये पूछो। आप बोले एप्पल जैसे है ना वो कार्बन एमिशन बहुत कम करता है, पर आपके पास एप्पल का फोन है क्या? आपके पास एप्पल का फोन है? एप्पल कार्बन एमिशन नहीं करता है, ये जानने के लिए मेरे पास एप्पल का फोन नहीं होना चाहिए। कार्बन एमिशन मेरा पॉइंट नहीं है। मेरे पास इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए जो कि न्यूज़पेपर में आता है। मेरा पॉइंट है हाई कॉस्ट। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उसका प्राइस वो अपने मनमाने तरीके से ऊपर करती है, ठीक है? तो आपके पास एप्पल का फोन है, बताइए। वही अगर कोई गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडी देती है, जैसे आपके पास सिलेंडर है मिलता है ना आपको, अगर वही कोई प्राइवेट कंपनी आती तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस कर देती है, फिर आप भी आई मीन सॉरी कि आप देखिए मेरे पास एप्पल का फोन है, उनके पास नहीं है। मेरे पास होना भी नहीं चाहिए, खरीदेंगे भी नहीं। अब मैं एक क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्राइस है। सर वो प्राइस वाला नहीं है। मैं आपके पॉइंट पे आता हूं। यस सर, यस सर। अब नहीं बात क्या है कि इस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है प्रोडक्शन पर। अगर उसके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, सेल नहीं हुआ, वो कम कर देगा प्राइस, ठीक? Yes. जो आईफोन आपको 60,000 में आज मिल रहा है वो हो सकता है 41,000 में। यस सर, यस सर, ठीक है। यस। तो जो है वो सवाल यस। हमारा क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन करप्शन रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैं टोका हूँ, ठीक है? इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन एंड द सेलिंग। अगर मैंने जो 1000 आईफोन बना लिए तो अब मेरा जो सेल हो ही नहीं रहा है, मैं कल मार्केट में जो है उसी फोन को 40,000 में बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ, मैं क्या करूंगा उसको रख के, समझे? यस। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू सर। Good afternoon everyone, I am Sakshi. So I am here to talk against the topic. As I have mentioned few of the points about schools and like medical facilities, let's talk about the natural vegetation. Like private companies only focuses on its profit. It doesn't see whether it is harming the flora, fauna, or whether it is harming the people residing on the places where they can grow their business. Also, secondly, if we talk about jobs, so
there is a point at the time of interviews. You can do agreements with any of the employee of that company for the referral, and you can get the job in private sector also. That is also corruption. And if we think about privatizing the railways, like one of you are saying that private railways are clean and they maintain everything very properly. But what about those people who have to travel less distance on a daily basis? Like if someone wants to sell their vegetables, and if someone wants to go to school for only one station, they can't afford that if those sectors get private. And in schools also, private companies have many policies which seems in favor of people. But at last they try to gain as much profit as they. हेलो हेलो, जैसे कि मेरे आपने बोला फ्लोरा फौना को ये सब नहीं देखता है, दोस्तों करप्शन से क्या इसका रिलेशन है? वो तो गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट भी जानता है जैसे कि ऐसे क्या बोलते हैं इंडस्ट्री लगा देती है, उसमें फिल्टर का ऐसा नहीं रहता है, तो बहुत सारे जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे हुआ, तो फ्लोरा फौना का करप्शन से क्या रिलेशन है? करप्शन करप्शन का मतलब पहले क्या है तुम्हारे हिसाब से? अरे करप्शन मतलब होता है, हाँ क्या होता है? बहुत सही क्वेश्चन है। पहले ये तो आप बताइए कि व्हाट इज करप्शन? सर करप्शन मतलब कि सेल्फिशनेस या किसी भी रूल्स रेगुलेशन जो है उसको उस तरह से फॉलो नहीं करना, तुमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक तुम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम उसको गलत तरीके से अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, तो वो करप्शन होता है। लेकिन दुनिया तो मनी से चलती है। सर करप्शन होता है। अब बहुत सारा पॉइंट्स आया था कि स्कूल्स में टीचर नहीं आ रहे या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, तो फिर भी एटलीस्ट गवर्नमेंट में एक होप तो होता है कि काम लेट से होगा बट हो जाएगा। प्राइवेट में जिसके पास पैसा ही नहीं है उसका काम ही नहीं होगा। लाइक इफ यू हैव मनी यू गेट द फैसिलिटी, इफ यू डोंट हैव मनी देन आपको वहाँ पे चांस भी नहीं दिया जाएगा। ये तो तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन का गुड और बैड थिंग हो गया। करप्शन का इसमें क्या लेना देना, काम नहीं होगा। अच्छा मान के चलो प्राइवेटाइजेशन में कोई हॉस्पिटल है वो 10,000 रुपए लेता है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं करवाने के लिए, इसमें करप्शन कहाँ से आ गया? सर तो लाइक अगर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी प्राइवेटाइज कर देंगे तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाएगा ना। और वो इनइक्वालिटी अगर इंडिया की बात करें तो अगर हर आदमी तक वो चीज़ एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो वो भी एक टाइप का करप्शन हो रहा है। लाइक कि वो पैसा ले रहा है, काम कर रहा है, तो वो एक टाइप का लाइक प्राइवेट घूस टाइप का हो जाता है ना कि अगर तुम पैसा दे रहे हो तुम्हारा काम करेंगे, तुम पैसा नहीं दे रहे हो तो वो एक टाइप का करप्शन ही होता है। एक बात मान के चलो अभी तुम स्टूडेंट हो, जितना तुम्हारे पास अर्निंग है या घर से जो पॉकेट मनी मिल रहा है उसमें तुम फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते, ठीक है, ट्रेन का टिकट कटा सकते हैं, फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते, तो क्या ये करप्शन हो रहा है तुम्हारे पास? नहीं सर, बट अगर प्राइवेटाइज रेलवे को कर दिया गया तो कल को ट्रेन में भी नहीं चढ़ सकते। प्रैक्टिकल थिंग्स पे आओ, जैसे सुनो ना, कम टू द प्रैक्टिकल थिंग्स। तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाओगी, तुमको इलाज होने में मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे ठीक है पैसा लेगा, लेकिन वो काम करके देता है तुमको। वो गवर्नमेंट सेक्टर में ठीक है, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल थिंग्स पे तो और इंडिया में क्या होता है? ठीक है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लाइन देख लीजिए कितना बड़ा है और वहाँ पे कितने लोगों का इलाज हो रहा है। आप प्राइवेट में जाइए, जो चीज अगर गवर्नमेंट में 5,000 का हो रहा है उधर 5 लाख का होगा, तो एटलीस्ट वहाँ होप तो रहता है कि डॉक्टर आएगा आपको देखेगा। प्राइवेट में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अच्छा मेरा एक सवाल है डर लगता है क्या
जो जैसे एक कोई बोल रहा था कि एलपीजी जो सिलेंडर है, ठीक है, उसमें जो है वो जो सब्सिडी जो है वो जो डिबेट आपको देते हैं, ठीक है, क्या वो प्राइवेट कंपनी नहीं देती? सर इसके बारे में साइड में तो वो भी देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको लेना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर जो गवर्नमेंट दे रही है वो सबको दे रही है, जानबूझ से मतलब बता के दे रही है, प्राइवेट कंपनी को लेना आना चाहिए। According to the DPSP, according to the DPSP, Directive Principle of State Policy, ठीक है, Directive Principle of the State Policy, उसमें मुझे थोड़ा याद नहीं है, 37 या 38 जो आर्टिकल है वो ये कहता है, वो गवर्नमेंट को कहता है कि ये आपका धर्म बनता है कि आप करें, गवर्नमेंट इज बाइंडेड विद दैट लॉ, उनका वो काम है, उनको वो करना होगा, बिकॉज दैट डीपीएसपी वो उनको आदेश देता है, ठीक है, बट द प्राइवेट कंपनीज इज नॉट बाइंडेड विद द लॉ। सॉरी सर, बट यहाँ पे डीपीएसपी आदेश देता है, बट हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट चाहे तो करे ना करे, उसके ऊपर डिपेंड। कौन बोला कि आप उसको चैलेंज नहीं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है डीपीएसपी की पॉलिसी के अंदर कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सभी डीपीएसपी जो है वो ऐसा नहीं है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब सर लिखा हुआ है कि मैं चाहूंगा कि उसको चैलेंज कर दूं, ऐसा नहीं है बाबू, कर सकता हूं मैं। सभी डीपीएसपी जो है वो ऐसा नहीं होता कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उस डीपीएसपी को चैलेंज नहीं कर सकते जो डीपीएसपी जो है वो किसी हित में काम कर रही है, समझ रहे हो? सर माइनॉरिटी एक्ट है, उसके लिए तो माइनॉरिटी एक्ट को काम करना मैं है। माइनॉरिटी एक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप केवल जो है वो उस डीपीएसपी को चैलेंज नहीं, और अब ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप जो है मैटर मेरे पास लाओ, तो अगर मुझे लगेगा कि इसमें कुछ बात है तो मैं इसको सुनूंगा, तो और अगर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में इसको सुन रहा है, दैट वो चैलेंज हो सकता है। रिव्यू प्रोसेस, नॉट चैलेंज प्रोसेस, रिव्यू प्रोसेस। अरे रिव्यू प्रोसेस है, एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जो है चाहे तो उसको जो है वो मैटर बना के कहे कि इसको चैलेंज करो, मैं इसको सुनूं, समझ रहे हो? हाँ, तो आपका आइडिया है, समझ रहे? चलो नेक्स्ट नाम बताओ। Everyone, myself Shubham, I will be speaking against the topic. See, first of all, we live in India. In India, we believe government officers are very corrupt, which makes us a notion, which makes us an assumption that privatization will reduce the corruption. But do we think this is true? Let's assume, let's see the information. Suppose USA is a capitalist country, and in a capitalist country, all they focus is on money. But do we think that USA focuses only on money? The public sector of USA comprises of 15%. While in India, which focus. आप अपना फेस बोलना सब पा जाएगा, आराम से आप बोलिए, क्योंकि एक तो आपका माइक जो है वो कर रहा है, ठीक है, आराम से। I was talking about USA, which is a capitalist country. कि सपोज एक यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पे होना चाहिए, लाइक मनी शुड बी द प्रायोरिटी। बट हम लोग डाटा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 15% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज एंगेज इन पब्लिक सेक्टर ओनली, व्हाइल इंडिया जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, जो कि नेशनलिस्ट कंट्री है, जो फोकस में नेशन पे रहता है, सोशलिज्म पे रहता है, कम्युनिज्म पे रहता है, वो इन चीजों पे फोकस नहीं करते, बट स्टिल द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इज ओनली 5%। तो क्या हमें लगता है कि इस 5% को हम और एक कम कर देना चाहिए, हमें इस 5% का जो पब्लिक सेक्टर में पीपल इन्वॉल्व है और कम कर देना चाहिए। और सिमिलरली मेनी पीपल गिव आर्गुमेंट कि प्राइवेट सेक्टर बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत सिस्टमैटिक चीजें होती है, बहुत मैनेजमेंट अच्छा होता है, बट क्या ये सही है? वर्ल्ड का जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज है, जो वर्ल्ड का टॉप 500 कंट्रीज है, उसका जो 52% कंपनीज वो बैंकरप्ट हो चुका है। ऐसे कितने सारे कंपनीज होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो वो लॉसेस में फेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे बायजूस है जो लॉस में फेस कर रहा है, तो क्या उनके पास मैनेजमेंट नहीं है? इनके पास भी मैनेजमेंट है, बट क्या ये
बट क्या उस मैनेजमेंट को यूज कर पा रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि कंपनी साइड में बहुत सारे यूजेस होते हैं। सिमिलरली अगर हमारे कंट्री में ऐसा एक इंडस्ट्री, ऐसा एक सेक्टर है जो कि लॉस में चल रहा है, तो गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सम रेगुलेशन, गवर्नमेंट शुड टेक हेल्प ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज टू इंट्रोड्यूस न्यू मेजर्स टू दोस कंपनीज एंड हेल्प देम टू ग्रो। ऐसे किसी कंपनी को जस्ट बिकॉज कोई लॉस में है तो भाई तुम निकलो, साइड उठो, ऐसे नहीं कर सकते, राइट? सिमिलरली दिस वाज द केस ऑफ बीएसएनएल, जहां पे टाटा की हेल्प से बीसीजी बेरेंजर से आपको गवर्नमेंट के इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो आपको ये बताना होगा कि गवर्नमेंट जो संस्था है उसके वजह से करप्शन कम कैसे होगा। तो उसके ज़्यादा होने से, जैसे प्राइवेटाइजेशन अगर हम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बॉडी ज़्यादा होने से करप्शन कम कैसे होगा, ये बोलना है। सर जैसे पिछले 10 साल का सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ लास्ट 10 years, so do you think that corruption has gone reduced? I definitely think that corruption has gone reduced. The improvement in railways can be easily seen. Suppose before 10 years the railway system was not clean, but now it is clean. So it is a gradual process. It will not take a certain step. It will not just new companies introduce it. It will just take all the steps. It is a gradual process. The government is introducing many measures. Suppose the attendance policy is introduced. In many government sector, attendance issue. If the person doesn't come on attendance, that his whole day salary is cut. So these are some of the reforms which government is doing so that these things can be done. Right? It's a gradual process. It should not be done at a sudden step. So I think this is the. लेकिन अगर ये इससे बेहतर सुविधा हमको प्राइवेट में मिलना है तो हम क्यों नहीं वहाँ पर जाएंगे? वहाँ पर तो करप्शन भी नहीं है। जैसे अगर बीएसएनएल में देखें, बीएसएनएल का बात करें, वहाँ करप्शन दिखा और हमको सर्विस भी नहीं मिल रहा। लेकिन जब जियो आया तो हमको सर्विस अच्छा दे रहा है, सारा चीज़ बढ़िया दे रहा है, तो हम क्यों नहीं उधर जाएं? यहाँ पर हम क्यों करप्शन के चक्कर में? सर क्योंकि अगर बीएसएनएल नहीं आएगा तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। जियो जो चाहे वो कर सकता है, तभी तो गवर्नमेंट बीएसएनएल को एयरटेल भी तो है। एग्जैक्टली। बट सर जब एयरटेल था तो सर सपोज एयरटेल स्टार्टिंग में था तो एयरटेल एक मोनोपोली क्रिएट करके मार्केट में रखा, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा था। उस प्राइस को कम कब हुआ जब जियो आया। एयरटेल जब था तो उस टाइम 3G चलता था, 4G पे वर्क नहीं कर रहे थे। जियो आया तो 4G एनवायरमेंट इकोसिस्टम क्रिएट किया। तो जियो के अंदर इकोसिस्टम क्रिएट किया, बीएसएनएल है और इसका प्राइसेस डाउन रहेंगे। अगर गवर्नमेंट का इंडस्ट्री वहाँ पे खड़ा है तो बाकी सारी कंपनी उससे कम्पीट करेंगे, उस रूल्स एंड उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ है ही नहीं, अगर 100% प्राइवेट है तो अपने रूल्स एंड तभी तो कोई कंपनी प्राइवेट है, ऐसे कुछ फॉलो नहीं कर सकता। अच्छा, अभी स्कूल का आपने बात किया, अभी बिहार में स्कूल का भी सुना होगा न्यूज़। इसमें क्या हुआ है कि सभी बच्चों को किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बैग और उसमें किट वगैरह, उसमें भी करप्शन हुआ है। 10 रुपए का बैग 50 रुपए में, 100 रुपए में खरीदा गया। तो ये तो करप्शन, अगर सरकारी कंपनी इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा देंगे तो और ज़्यादा करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी और करप्शन कर रही है। ये तो एक प्रूफ है कि बैग 10 रुपए का खरीद रहे हैं 150 रुपए। सर लाइक तो मतलब इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मैं बोला कि जैसे प्रोसेस है गवर्नमेंट रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन करप्शन तो नहीं रुकेगा ना। सरकारी कंपनी करप्शन कम हो सकता है, रुकेगा तो सर कभी नहीं, प्राइवेट में बेस नहीं रुक सकता। हेलो, मेरा सवाल है, जैसे कि हमने जियो, एयरटेल, बीएसएनएल के बारे में बात करता था, तो जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है कि एयरटेल, जियो है तो दोनों प्राइवेट कंपनी है, तो दोनों में आपस में कंपटीशन होता है, तो उसके कारण कि कोई रिड्यूस कम करता है और अपना प्राइस कम करता है। लेकिन बीएसएनएल क्या, वो तो गवर्नमेंट है, वो अपना मनमानी करेगा, हम टावर लगाए नहीं लगाए, प्राइस बढ़ाए नहीं बढ़ाए, और यहाँ पे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सबसे मेन पर्पस कॉमन इंटरेस्ट के लिए होता है, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। जो पैसा गवर्नमेंट यूज करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। तो गवर्नमेंट ऐसे बेस ओके मैं इतना कर दूंगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट जो करेगी पब्लिक अकॉर्डिंग करेगी। जियो एंड एयरटेल कैन से क्योंकि आई विल डू दिस, आई विल डू एनीथिंग, इट्स माय कंपनी, आई विल डू एनीथिंग, डू नॉट बाय फ्रॉम अस। तो गवर्नमेंट कर भी तो नहीं रही है, क्या कर रही है? बीएसएनएल ने कितना टावर लगा दिया? बीएसएनएल कर रही है, टाटा से बैक किया गया कंपनी को, बीसीजी को 100 करोड़। करप्शन तो है वहाँ पे, करप्शन के कारण इन्हें टावर नहीं लगाया। ऑफिसर्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी करप्शन ना करे तभी तो गवर्नमेंट कंपनी खुद इतने पैसे खर्च करके आ रही है, जिससे करप्शन ना हो। यहाँ पे तो हायर अथॉरिटीज ही करप्ट होते हैं, तो फिर तुम क्या बोलोगे गवर्नमेंट सेक्टर में? ऐसे तो प्राइवेट सेक्टर में आ सकते हैं। 2G स्कैम हुआ था, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ था, 70,000 करोड़ का स्कैम कर दिया था प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो उसमें क्या, ऑब्वियसली हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व होते हैं, अथॉरिटी कम होगा, धीरे धीरे कम हो। दोस्तों अल्टरनेटिव ढूंढेंगे तो प्राइवेटाइजेशन क्या है कि कम करेगा, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मतलब हटा देगा। तो अल्टरनेटिव मेथड है कि अल्टरनेटिव जैसे आज के टाइम में सिलेंडर्स घर में हम लोग आते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है।
और बहुत सारे जो हमारे जो बिजली आते हैं वो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। धीरे धीरे जो गवर्नमेंट फार्मर के आज के टाइम में एमएसपी दिया जाता था, फार्मर को ऑनलाइन कर दिया जा चुका है। क्यों? क्योंकि बीच का जो स्टेक होल्डर था जो हट जाए, डायरेक्ट प्राइस मिले, डायरेक्ट गवर्नमेंट सीधा जो कॉमन पीपल है उससे बात करे कि हाँ ये है। ऐसा नहीं कि बीच में भी कोई है, बीच की पब्लिक को हटाया जा रहा है। क्यों? ऑनलाइन किया जा रहा है, सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज से कि इस करप्शन को हट जा सके। सबसे सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ प्राइवेट करने से करप्शन खत्म नहीं होगा, हमें बीच का रास्ता होगा जो है पीएसयू, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट का जो इक्विटी है कम से कम 51% और प्राइवेट का 49 से लेस रखना होगा, मतलब गवर्नमेंट का डोमिनेशन ज़्यादा रखना होगा, तभी जाके हम बीच का रास्ता निकालेंगे जहाँ दोनों मिलकर देश को ग्रोथ दे रहे हैं। ये आप बता रहे थे डिस्कशन उसका एक बीच का पॉइंट होता है, ऐसा हो सकता है। पीछे किसी और नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन यार प्राइवेट को तुम लोग इतना जो है वो नीचा दिखा रहे हो आपकी बात। जब कोविड का समय था, कोविड का समय तो मुझे याद है, ठीक है, जानते हो, जैसे मान लो कि हम लोग पे जो है वो टैक्स लगता है, हम लोग की सैलरी पर टैक्स लगता है, उन लोग पे टैक्स प्लस सेस लगता है। जितना ज्यादा पैसा उतना ही गवर्नमेंट जो है वो बांटेगी। ऐसा नहीं है, जैसे कोई आपातकालीन चीजें आती है ना, तो जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनके पास पैसा है वो पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। बट मेजर पैसा उन्हीं के पास रहता भी तो है, तभी तो जनता का हमारे पास तो है नहीं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ओनली 5% लोगों के पास ही पैसा होगा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल के चले गए। ये तो तुम्हारा गवर्नमेंट का ही है। ये तो जाहिर सी बात है कि जो है वो अमीर तो एक ही होगा, सब होंगे ऐसा फ्री में बैठे नहीं ना। अमीर तो एक ही होगा कि सब होंगे, सब अमीर तो हो जाएंगे तब तो हो चुका। 2 दिन पहले रिपोर्ट आया गरीबी तो कम हो सकता है, क्या होता है? गरीबी से कम हो सकता है, अमीर तो सब पता नहीं हो सकता। जो सबसे अमीर है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे गरीब है उसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बीच वालों को वो किधर जाए। सर कभी सोसाइटी में जाके देखिए, बस भी आप बोल रहे हैं जो गरीब है उसको दिक्कत नहीं है, बस पूछिए लोगों से जाके। अरे यार मैं कोई दिक्कत की बात नहीं किया। एक बार जाके देखिए, पता चलेगा। लोग किसी सर्विस के बारे में सोचते ही नहीं, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होता। बाकी हम लोग सोचते हैं। देखो पीछे तुम बताओ। आपने कॉम्बिनेशन का बात कभी किया एक था मिनट कभी उत्तर देना होगा ना मेरे चैम्बर में, तुमको मैं आराम से बैठकर उसको उत्तर दूंगा और सेटिस्फाइड उसको करूंगा। बोलो अभी ये समय नहीं है प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला मैं तुमको समझाऊंगा। चल आपने कॉम्बिनेशन का बात किया था कि कम्युनिस्ट कंट्री जो होती है वहाँ पे तो सारे स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि आज तक एक भी कम्युनिस्ट कंट्री सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जैसे यूएसएसआर, वियतनाम, चाइना ने भी जब तक वो कम्युनिस्ट था, जब तक वहाँ गवर्नमेंट कंपनीज मेजर स्टेक होल्डर थे, तब तक वो डेवलप नहीं हो पाया। करप्शन तभी भी था माओ जेडोंग के टाइम, लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन आया तब से आप देखिए कितने ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ी है। आज के टाइम में वर्ल्ड का 5 टॉप बैंक में 4 चाइना का 4 बजे रिपब्लिक बैंक है, तो पता नहीं कौन सा कम्युनिज्म और कौन सा पब्लिक मुझे नहीं पता, बट जो टॉप 4 बैंक है आज के टाइम में पब्लिक सेक्टर बैंक, सो प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो डेफिनेटली आज के टाइम में चाइना इस पॉलिसी पे वर्क करेगी, पब्लिक ही है। अगर चाइना केस को फिर भी अलग रख दे तो फिर यूएसएसआर को लेकर क्या एक्सप्लेनेशन आएगा? मतलब मेरे हिसाब से कम्युनिज्म और गवर्नमेंट कंपनीज डूम्ड टू फेल, जहाँ तक हमको लगा, क्योंकि एफिशिएंसी रहेगा नहीं, इनोवेशन रहेगा नहीं, करप्शन बढ़ेगा, ओलिगार्की आएगा, पावर। असल में करप्शन पीपल ही करते हैं, वो प्राइवेट क्यों या पब्लिक क्यों। एट द एंड क्वेश्चन ये है कि प्राइवेटाइजेशन एज ए इंस्टीट्यूशन वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो करप्शन को कम करेगा। वहीं गवर्नमेंट एज ए इंस्टीट्यूशन, लोग वहाँ भी हैं, करप्ट लोग वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा स्कोप है। आप अमेरिकन ऑयल कंपनीज को देख लीजिए, वो भी करप्ट हैं, बट एट द एंड वो एफिशिएंट भी ज्यादा है, इसलिए अमेरिका जीता और यूएसएसआर हारा। लाइक यू टोल्ड अमेरिका, तो अमेरिका में 13% जो वर्कफोर्स है पब्लिक सेक्टर में भी है, बट इंडिया का ऑलरेडी 4.8% है। इंडिया तो ऑलरेडी कम है, तो उस जो कम इंडस्ट्रीज अभी बचे हैं उसको वापस प्राइवेटाइज कर दें। ठीक आपका सवाल अच्छा था, पीछे आपका सवाल अच्छा था और आपका डिफरेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीजों को उत्तर आते हैं। डिफरेंट का मतलब ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को गलत या सही कैसे टैकल करते हैं।
Yes. Good evening, everyone. So I will be speaking for the topic. In reality, I am against it, but since I have to speak, so I will try to give my best. पहले आप ये बता दो कि आप फॉर्म हो गए Ford, sir. So first of all, we have seen that the private companies which enforces the innovation in companies, like in the case of SpaceX, we have seen how far it has improved from certain time. Even our ISRO it's been using its satellite for the its rocket for the launch of the satellite. Second is that once we privatize each and every government sector, then it will attract the foreign investor and which will help to improve our overall GDP. Since our government is focusing on to be the top 3 of world's biggest GDP, then it will definitely improve it. And the competition will increase, the innovation will also increase. So the place where the people start discussing about innovation, the things like corruption will already start vanishing. The third point is that we are talking about the privatization of railway. During the Lalu Yadav's era, when he was the railway minister of the India, he sold a lot of railway assets because that railway is not privatized. So a lot of railway assets have been sold, and so who is suffering from it? The common people are suffering. In case of Japan, it has already privatized their railway. First of all, we can see how much it has been successful decision for Japan, because they divided all their railway into few parts and they sold each and every part to the private company. Due to which इंटेंशनली नहीं पूछ रहा है, सही चीज होगा तो ही पूछ रहा है। जैसे आपने बोला कि प्राइवेटाइजेशन करने से चीजें ज्यादा अच्छा होगा, तो जैसे किसी ने एक पॉइंट बोला था उसमें कि इनइक्वालिटीज इन सोसाइटीज बढ़ जाता है इससे। तो एक MDPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा है जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये 2020 में रिलीज किया था। इसके अकॉर्डिंग 21% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज द BPL, इज बिलो पॉवर्टी लाइन, और वो सिर्फ 3 चीज को कवर किया था, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बस सिर्फ 3 चीज का। और कितना लोग बिना खाए सोते हैं वो अलग डेटा है। और आप बोले और प्राइवेटाइज कर दो ताकि गरीब और गरीब हो और अमीर हो। क्या प्राइवेटाइज करने से गरीब और ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो एवरीबॉडी फोकस ऑन पुअर पीपल, बट नोबडी फोकस ऑन मिडिल क्लास, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। सो मिडिल क्लास अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको और बेटर बनाना चाहिए। पुअर पीपल के लिए गवर्नमेंट कई सारे स्कीम है, जैसे BPL कार्ड देती है, अलग अलग राशन कार्ड देती है, तो उनको भी इम्प्रूव किया जाता है। बट अगर मिडिल क्लास पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो मेजर पॉपुलेशन है वो पीछे चला जाएगा। ओके, Don't you think privatization will lead to monopoly, which will automatically lead to corruption? First of all, since the government start privatizing them, then government must set some price caps. Like for medicine, there should be price cap. The private companies should not increase the price more than 100, more than 200 rupees, so that the problem will be solved. No, I am talking about monopoly. Like एक ही कंपनी डोमिनेट कर जाएगी ना फिर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्राइवेट हम लोग करेंगे तो और कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनोवेशन और बढ़ेगा, तो मोनोपोली से क्रिएट होने का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि एक लोकपाल बिल भी आया था, तो उसमें ऐसा कुछ था कि कंपटीशन और बढ़ाया जाएगा, जिसके कारण जो करप्शन है वो रिड्यूस होगा। Okay. When you talk about the former railway minister and former chief minister of Bihar, he didn't privatize the railway. He only sold the garbage and the unimportant things in the railway. He didn't privatize the railway. I was not saying that. You told me he I was privatized. just saying that since railway was not privatized, that's why those things happened. If it was privatized, those things would have not happened. Yes. GDP का तो सर अगर प्राइवेट कंपनीज देखा जाए तो वो काफी मेजर रोल प्ले करता है GDP को इम्प्रूव करने से। कि एक BCCI वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और सेकंड इज सर कि अगर टेक्नोलॉजी को हमको और चाहिए हमारे कंट्री में, तो हमको प्राइवेटाइज करना होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आकर हमारे कंट्री को इम्प्रूव करे और उनका टेक्नोलॉजी हम लोग शेयर कर सके। और तीसरा सर कुछ ऐसे भी पार्ट्स है जिनको मैंने बोला प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया सर, तो वो पूरे लोगों के लिए जरूरी है कि उन्हें गवर्नमेंट रहने चाहिए। during my PhD, जब मैं PhD
ठीक है। तो मेरा जो फील्ड है वो है कच्छ गुजरात, ठीक। तो गुजरात में जैसे एयरपोर्ट पे उतरा, वहां पे लिखा था अडानी एयरपोर्ट, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अडानी एयरपोर्ट। क्या ये सही है? सर फिर यही नहीं, फिर मैं आगे बढ़ा, ठीक। तो वेस्टर्न कच्छ के सबसे लास्ट पॉइंट पे जो है मेरा फील्ड एरिया है, मैं कोयले पे काम करता हूँ, ठीक है। मैं आगे और बढ़ा तो कई सारे विंड मिल लगे हुए थे, ठीक है, लिखा था अडानी विंड मिल। सर ये शो करता है कि आपने प्राइवेट प्लेयर को दे दिया भाई। अगर कोई सरकारी चीज है और मैं एक प्राइवेट प्लेयर, मैं अपना नाम उसको कैसे लिख लूंगा? जब तक मुझे गवर्नमेंट आदेश नहीं देगा, जब तक मैं उस चीज को खरीद नहीं लूंगा। जैसे आप कोई सामान खरीद लेते हो तब ना लिखते हो कि ये मेरा सामान है, मेरी बात ठीक है। तो मैं आपके आगे चला गया, अब इसका उत्तर आप दीजिए। जैसे कि सर अगर इंडिया में इंदिरा गांधी नेशनल हाईवे हो सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी देश के लिए अच्छा काम किया है, उनके नाम पे है। वैसे अडानी सर कई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया इंडिया में लाखों, उसके नाम पे यू कांट कंपेयर इंदिरा गांधी विद अडानी। अडानी। नॉट कंपेयरिंग सर, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस भी है, यस सर, है हमारे देश ऐसे तो लाल बहादुर शास्त्री भी है सर। हमारा तो वो लोग तो इमिनेंट पर्सनालिटी है ना भाई। मैं किसी पार्टी बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशन ऑफ एनी पार्टी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि दे आर द इमिनेंट पर्सनालिटी, यस सर। ठीक है। तो उन्होंने अपने फील्ड में कुछ न कुछ योगदान दिया, देश के लिए दिया सर। पूरा अच्छा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन कुछ न कुछ योगदान दिया तो गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये इमिनेंट पर्सनालिटी है, इनके नाम पे कुछ बनाया जाए। यस सर। अडानी को तो इमिनेंट है सर, अडानी भी गवर्नमेंट को लोन देती है सर। अरे भाई अभी मैं इमिनेंट का मतलब समझते हैं? जरूरी नहीं कि इमिनेंट है तभी उनके नाम को। जैसे रतन टाटा जी इशू है, रतन टाटा जी को भारत रत्न नहीं मिला है। हाँ, रतन टाटा की आप बात करते हो, ठीक है। मैंने अडानी की बात की, यस सर। ठीक है। आप रतन टाटा को कंपेयर नहीं कर सकते, यस सर, नहीं। ठीक है। रतन टाटा का स्केल ही अलग है ठीक है। अब मैं जस्ट एग्जांपल आपको किया कि मैं जो निकला, क्या आपने ये कहीं देखा है कि टाटा एयरपोर्ट आपने देखा है? टाटा कंपनी से अरे भाई टाटा की अपनी कंपनी है ना। यस सर। टाटा अपना जो है वो गाड़ी बनाता है, अपना जो है वो 4 व्हीलर बनाता है, तो उस पर तो वो लिखेगा ही। तो अगर मैं बनाता हूँ ऐसा टाटा, तो मैं तो अपना लोगो तो लगाऊंगा नहीं, तो उसमें तो कोई सिम तो नहीं है, तो उसमें कोई वो तो नहीं है। मेरा हाल अगर तुम बोले प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, उसका व्यू क्या है? मान के चलो कि बहुत सारा ऐसा पीएसयू है और कंपनी है जो कि अच्छा कर रहा है, जैसे कि डीआरडीओ है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, इस तरह का कंपनी है जो अच्छा प्रॉफिट सरकार को कमा करके दे रहा है। तो अगर ये सारी कंपनी प्राइवेट हो जाए तो इनका मुनाफा भी किसी एक सिंगल पर्सन के हाथ में जाएगा, और अगर ये कंपनी सरकारी कंपनी है तो वो मुनाफा सरकार के खाते में जाएगा। तो कंपनी को क्यों प्राइवेट किया जाए, सरकार के ही हाथ में रहने दिया जाए, अच्छा से काम करेंगे, प्राइवेट मुनाफा भी सरकार। सर ये प्रोसेस काफी स्लो था सर, गवर्नमेंट में आप देखिएगा कि काफी स्लोली इनोवेट होता है, लेकिन अगर सब प्राइवेट होगा तो उसमें इन्वेस्टर बढ़ेगा, पैसा आएगा और फास्ट हो जाएगा सर उनका ग्रोथ। ऐसा तो नहीं दिख रहा है हमको, जैसे डीआरडीओ है इतना सक्सेसफुल कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी नहीं है इंडिया में। सर डीआरडीओ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सर के बोलने का मतलब ये है, सर के बोलने का मतलब ये है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं 8 बजे अपने घर जाता हूँ, लेकिन मैं जब घर जाता हूँ अपने मतलब जहाँ में रहता हूँ तो वहाँ मुझे 6 बजे तक घर आ जाना, समझ लो नहीं समझ लो। घर वाला एग्जांपल नहीं समझे। मतलब सर का कहना ये है कि एक पेरेंट जो मेरा है वो मुझे रेगुलेट करे और मैं एक पेरेंट से अलग हट के मैं रेगुलेट करूँ। तो सर पेरेंट ही अगर रेगुलेट करेगा तो हो सकता है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अगर पेरेंट्स हट के रेगुलेट करें तो स्कोर ज्यादा होगा सर। चलो ठीक है।